सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रसाद है, मैं डेलॉयट से हूँ। वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन अचीविंग द 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल। अच्छा लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ साथ में बैठे हैं एंड आई थिंक स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन एंड इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये गोल अचीव करें साथ में। जो मैं आज बात कर रहा हूँ, द टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और कुछ हाउसिंग का कंपोनेंट हम कवर करने वाले हैं। सो एज डेलॉयट वी हैव proposed 13 transformational ideas in infrastructure। जैसे कि हम की सब सेक्टर्स देख सकते हैं: हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट फ्लीट सेगमेंट and civil aviation. These are the 4 components which we have looked into. जैसे कि आप देख सकते हैं, housing में a huge inventory of unsold housing is there, which जिसका disposal होना अभी बाकी है. Second is we are proposing 100 new townships across उत्तर प्रदेश. Third, हम बात कर रहे हैं digitization की, जिसमें हम map approval processes को fast processing के लिए we are using GIS based tools. In the transport sector, passenger segment में, जैसे कि मैम ने बताया previous presentation में, for improving the GSDP estimation, transport segment में जैसे GSVA allocation होती है, जिसमें commercial vehicles का बहुत बड़ा एक it has a big component. तो currently जो GSV allocation है and in terms of transport sector जिसमें commercial vehicles हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं. There are currently around 19 lakh transport vehicles and 3.3 crore non-transport vehicles. तो आप अगर देखेंगे तो इसका एक gap बहुत बड़ा है, जिसमें we are trying to work with the transport department to bridge the gap. एंड इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ पे कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं देयर आर अराउंड 33 लाख. तमिलनाडु में 22 लाख है एंड कर्नाटक में 28 लाख है. सो अगर हम इसको देखें तो इट्स अ बिग गैप व्हिच नीड्स टू बी फिल्ड. फिफ्थ कंपोनेंट इज मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, जिसमें हम वी आर वर्किंग विद वेरियस सिटी बस SPVs and also looking into launching the UMTA bill, that is the Unified Metropolitan Transport Authority for Uttar Pradesh. तो UMTA जो है it's an authority which will have the integration of all the transport modes in the state as well as at the urban level, at the city level. Third is we are working on augmenting the revenue of UPSRTC. So इसमें हम we are focusing on the non-firebox revenue of UPSRTC. The seventh component is on improving public transport services, जिसमें we are looking at digitization as a major component. We are also looking at the segment of freight and logistics, जिसमें हमने recently एक road index भी तैयार किया था to look into the overall infrastructure at the state level कि कहाँ connectivity है, कहाँ gaps हैं, कहाँ missing links हैं. And we are also looking at augmenting the road capacity, boosting the intermodal logistics infra capacity, and setting up dedicated freight lanes जहाँ जहाँ requirement होगी. So quickly just touching upon the housing segment, जिसमें currently we are working on disposal of around 29,000 unsold units, which is worth more than 10,000 crores across Uttar Pradesh. We are also working on proposing a development of around 100 new townships across Uttar Pradesh. Also, हमने recently we have just floated, just 18 September को हमने fast pass RFP float किया हुआ है, जिसका अभी pre-bid भी happening on the 4th, it happened on the 4th of October, and we'll be onboarding a system integrator as well. So इससे quick processing. So जो काफी महीनों से, सालों से अटक जाती हैं, so those things will be digitized and quickly process हो जाएंगी. Touching upon the transport segment, जिसमें हम बात कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, नंबर 1 कंपोनेंट जैसे हमने बताया, so there is a huge leakage in the commercial vehicle registration. तो हम currently we are integrating this with a dedicated helpline and also परिवहन मित्र ऐप से हम इसको कोशिश करें टैप करने की. And we are also using ANPR technology, that is the automatic number plate recognition technology, जो
हमारे टोल प्लाजास में लगते हैं, हाईवेज में, एक्सप्रेसवेज में। हालांकि अभी इवन पीडब्ल्यूडी स्टेट हाईवेज में भी लगने की बात कर रहे हैं। तो एवरी 50 किलोमीटर्स पे हम ये कोशिश करेंगे कि इट बी इंस्टॉल्ड, सो दैट जितने भी व्हीकल्स हैं विच आर नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल्स जो चल रहे हैं एज अ कमर्शियल व्हीकल, उसको हम टैप करें एंड हमारा GSVA एलोकेशन बढ़ जाए, जिससे इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द GSDP ऑफ द स्टेट। सेकेंड हम टच कर रहे हैं ऑन UPSRTC। सो हमारी जो परिवहन निगम है, जिसमें वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस courier services and parcel services. So these services have been in enforcement in आंध्रा, तेलंगाना एंड काफी सारे सदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी courier parcel services चल रही हैं। उनकी खुद की गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक्स कंपनियां चल रही हैं। सो व्हाई नॉट वी डू दिस फॉर उत्तर प्रदेश एज वेल। सो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी हैड स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस एंड वेरी सून एक RFP इसके लिए भी फ्लोट होने वाली है फॉर courier and parcel services. We are also looking at integrating the UPSRTC with tourism packages for UPSRTC. जैसे मैम ने बताया, टूरिज्म के सेक्टर में भी you have अयोध्या, वाराणसी, very important tourist destinations जिसको कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। So we are looking at integrating with the Indian Railways and UPSRTC, कैसे हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज एन एनेबलर। आपको कहीं दिखेगा नहीं कि ट्रांसपोर्ट से आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, but without transport nothing will work. So that is one main important aspect here. Third aspect we are touching upon is the route rationalization and digitization of services. So government of India की तरफ से there is an initiative which is the ONDC, Open Network for Digital Commerce, जिसमें it is an open network platform जहाँ पे हमारे service providers like UPSRTC हो गया या city bus SPVs हो गए, they will be onboarding their inventory into the network. And on the other side there will be buyers, जैसे buyer apps होंगे जहाँ पे it will be an open market. So open market competition रहेगा and you will have more choice of services to be taken for mobility within cities and also intercity operations के लिए. Fourth segment is the multi-modal integration, जैसे मैंने highlight किया था UMTA के बारे में, which is the Unified Metropolitan Transport Authority. So we are going to implement the comprehensive mobility plan, which is envisaged for 6 cities in Uttar Pradesh, and also network and fare integration will also be a part of this. Third हम बात करते हैं road index के बारे में, which was recently हमने बताया था, तो जिसमें road index में we are looking at हमारे पिछले 5 सालों में कौन से districts ऐसे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी काफी कम था और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा। तो हमने ये देखा कि सब्सटैंशियल डेवलपमेंट हुई है रोड नेटवर्क में इन दी पूर्वांचल रीजन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, माऊ, बस्ती, अयोध्या और वाराणसी। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी की इशू थी एंड नाउ न्यू रोड्स हैव कम अप। सो इससे ये एक तरीके का इंडेक्स है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द इंडेक्स स्कोर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है वो डिस्ट्रिक्ट की। Next, we are touching upon the expressways. So currently existing scenario ये है कि east-west connectivity, जैसे आगरा से लखनऊ, east-west connectivity काफी अच्छी हो रही है। We have also proposed that north-south connectivity भी बढ़ाया जाए. So an approximate investment of around 18,000 crores will be going into the for building expressways and greenfield expressways, also connecting the north-south corridors. We have also, mapped the industries across Uttar Pradesh. So हमने ये भी देखा है कि GDP बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। So to connect these industries, बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है कि you have the expressways, मगर expressway तक पहुंचने के लिए, वो ट्रक को वहां तक पहुंचने के लिए there is no way, there is not a all other road which is available. तो वो हम मिसिंग लिंक्स वी हैव मैप्ड एंड उसी मिसिंग लिंक्स को हमने कनेक्ट करने के लिए वी हैव गिवन प्रपोजल्स व्हिच आर ओवर वर्थ 41,000 crores. We are also looking at enhancing the capacity assessment. So logistics infrastructure जो है overall million metric tons में जो districts में already currently available हैं, so we have basically done a proximity mapping कि कहाँ इसकी कनेक्टिविटी की जरूरत है and we have mapped those districts and we have proposed new connectivity links there. Also we have focused on EXIM cargo, export import cargo mapping भी किया हुआ है. On the right you can see
the districts which are highlighted, which require an exempt facility right now, which are Rangpur, Agra, Kanpur. So few of the districts which needs these kind of facilities. Also touching upon the civil aviation aspect, we have supported the government in launching the airstrip policy for government of Uttar Pradesh, जिसकी कुछ salient features दी गई हैं on the right side. We have also worked with the government on floating a EOI for setting up of flying training organizations, FTOs, and MRO facilities, that is a maintenance, repair and overhaul facilities. तो एविएशन में जैसे हमारी गाड़ियों का भी गाड़ियों के लिए भी हम मेंटेनेंस करते हैं, सेम वे एविएशन के लिए, एरोप्लेन्स के लिए मेंटेनेंस का बहुत जरूरत होता है. बट इफ यू सी इंडिया में करंटली फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन दिल्ली एंड बैंगलोर एंड मुंबई फॉर सम बिट. तो वी आर ट्राइंग टू bridge this gap in UP, and UP can also become a hub for MRO facilities. So इसके लिए we have recently launched this EOI, जिसमें we have received around 16 bids for 11 airstrips across Uttar Pradesh. So this is the short brief from the transport and housing sector in part of the infra part. So I would request Arjun to continue with the tourism slides which he has to share. Thank you. I'm Arjun Digraskar and I'm working with the tourism sector as part of the Deloitte team with our aim to reach the $1 trillion economic target. So tourism, like Ma'am had said earlier, that the biggest impact in terms of GSDP for us is the tourist footfall. At the same time, we cannot forget that tourism is a major enabling sector because construction of hotels leads to GSDP in other sectors as well. Like Shekhar had also said right now, that transportation is also a part of tourism sector, which will ultimately lead to a growth of the entire state. So based on these things, we have developed this framework to take a look at the holistic impact of tourism sector on GSDP. So on the left, you can see that we have bifurcated it into consumption-led side, which mostly focuses on the demand aspect of the economy. The demand as in how are we going to attract the tourists to Uttar Pradesh and what activities and what they will be doing in the state. On the right hand side you can see investment led, which will focus on supply and demand both, but there is a large focus on supply side here, where we will look at how we cater to the demand which is coming into the state. So as part of number of tourists under the consumption led side, we can bifurcate the tourists into domestic and foreign. But at the same time, the domestic tourists can be bifurcated into two parts, which is people who are from Uttar Pradesh and people who belong to outside Uttar Pradesh. So now we know that Uttar Pradesh ranks first in terms of domestic tourist footfall with around 32 crores of footfall, and foreign it ranks fifth with 65 lakhs of tourist footfall. So we are also working on a new methodology to accurately capture this data. As Sir had also said earlier, that the tourist footfall being captured in the state currently is based on the number of hotels and the data reported by the hotels to the department. So we are working on a methodology as well, where we will be collecting more institutional data from different aspects to get a more accurate estimate. Now if we move to the next part, which is the per tourist expenditure, we can see that the expenditure can be decided based on two factors, that is the purpose, that why are the tourists deciding to come to Uttar Pradesh, what is the reason. So it is majorly for Uttar Pradesh, it is pilgrimage, and we will get to these aspects later on. The spend area, and where do they spend the money after coming to the state. So we'll just quickly move on and just look at these parameters in detail. So what I had said earlier, that about domestic and foreign tourists, that major reason is pilgrimage, which is visible from this table as well. That you can see that more than 90% of foreign tourists visit these 10 states, and I think 10 cities, sorry. And this data was being reflected by the slide shared by Madam as well earlier. At the same time, we can see that 75% on the right hand side on the bar chart, we can see that 75% of the purpose is related to pilgrimage. So the single experience is the major reason for tourism in Uttar Pradesh, and we can see that people come to Uttar Pradesh for religious purpose and go to only fixed cities. We are looking to diversify these aspects, try to see how we can incorporate more locations into the tourist destinations,
create packages so that tourists will stay longer in the state and ultimately will be spending more money in the state, which will enable the growth of other sectors. Now looking at the spend patterns of tourists in the state, this is based on the regional tourism satellite accounts, the data shared by them, published by them. We can see that the per tourist expenditure for business and medical purpose is very high on an compared to the average. So the spend for business sector is around 7 times more than the average tourist spend, and for health and medical is around 3 times. Whereas in the graph on the left hand side, you can see that the tourist spend for religious purposes is whereas only 1.5 times. So as I said earlier, that the main reason that tourists are coming to Uttar Pradesh is for religious purpose, but the average spend per tourist is less in that category. So this is where we are trying to focus on to in a holistic development of the tourism sector, where we will be introducing new categories such as MICE tourism and wellness tourism, where the tourists will be encouraged to explore other activities in Uttar Pradesh as well, which will help in increasing this metric. On the right hand side, we can also see that domestic tourists from other states spend 2.8 times more than the internal tourist, local tourist. International tourists spend 13 times more. It is a little obvious why this would be the case, because when people travel to long distances, they tend to make a longer tour and they'll be staying in the hotels for a longer time, which is also showcased in the graphic here as well, that the higher expenditure is in hotels and accommodations for these tourists. So this is the sort of the problem statement that we identified, and based on that we have identified these 5 bold plays where we believe it will help impact the economy of Uttar Pradesh. First is the increasing in the tourists. So attracting tourists to the state is a very important factor. So we are working on multiple fronts in marketing and promoting Uttar Pradesh as a brand for tourism. We have been in contact with multiple public relations agencies, media agencies, which will be conducting social media activities, TV campaigns, taking part in international trade and travel events in the source countries. These source countries we identified based on the statistics of UNWTO, where we identified the countries where the outbound tourists are higher, that is, the people travel from those countries a lot to different parts of the world, and also with the countries from where tourists spend a lot as well. So based on that, we have identified Australia, Germany, Japan and other countries in Europe, which we will be targeting to attract tourists to the country. As I said earlier, the spend is 13 times more for an international tourist compared to a local tourist. So that will also help us in impacting the economy as a whole. Secondly, it is on the demand side that if we are looking to bring in so many tourists into the state, we should have the infrastructure ready to cater to that demand. So in that aspect, we are working on a homestay policy right now. Hopefully it will be issued very soon, where we are providing incentives to the homestay owners, property owners, where they will be encouraged to develop homestays. At the same time, we will be encouraging online travel aggregators such as Make My Trip, Oyo, where the home property owners can register them with, so that the visibility of Uttar Pradesh on a national scale, on a global scale is increased, and people from outside get to know that they will be able to have a safe accommodation in the state. We are also working on many investment promotion initiatives for publicizing the UP tourism policy, so that hotel infrastructure can also be increased. Like I said earlier, that the single experience tourism is a major roadblock as of now. So in order to go past that, we are working on enhancing the tourist experience. So we'll be developing new destinations, maintaining the existing destinations and promoting that, so that we can create packages around the important tourist destinations where tourists can stay longer and indulge in more activities, which will promote the economy. The readaptive usage of heritage properties is another one. Uttar Pradesh is steeped in rich history of India, and we want to promote that, want to showcase that as well. So there are many forts, palaces across the state which are lying in a sort of a dormant stage right now. We want to invigorate that aspect as well. These properties, will be used for hotels, MICE centers, convention centers, wedding destinations, where the tourism will be promoted. Lastly, there are many hidden gems where people don't know about these two destinations. We want to inculcate that into the packages itself, and that way, again, the tourist industry will be promoted. So, this was a brief on what we will be doing and for the
मुझे सेक्टर के दो कंपोनेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज, वेयर हाउस, रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग कैसे जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आपसे विचार विमर्श करने को कहा गया है। आई डोंट नो, कल मेरा एक लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था स्टेट इकोनॉमी को या ओवरऑल इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर में बांटते हैं कैलकुलेशन के लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में इतने आइटम्स आते हैं: ट्रेड एंड रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। हमारे पूर्व के वक्ता ने अभी आपको ट्रेड, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट के संबंध में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीएसवीए, इसके बारे में आप लोग को बताया था। मैं अभी आपको स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब सबसेक्टर्स के जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में आपके सामने रखूंगा। बेसिकली कंसेप्ट जैसे मैंने पिछले साल कल बताया था आपको, इन सभी सेक्टर्स में हमारा अप्रोच ये रहता है कि इंस्टीट्यूशन वाइज हम जीवीए कैप्चर करें। इन सेक्टर्स में जो भी वर्क होता है वो उसको हम लोगों ने 5 इंस्टीट्यूशंस में बांटा है। पहला, उस सेक्टर में डिपार्टमेंट इंटरप्राइज काम करती है। दूसरा, नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस काम करते हैं। फिर जनरल गवर्नमेंट काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज काम करते हैं और अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज करती है। ये बेसिकली जो 5 इंस्टीट्यूशनल इंटरप्राइजेस हैं, इन्हीं में जो काम होता है या जो एक्टिविटीज होती है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीवीए में। सभी सेक्टर में कोई जरूरी नहीं है कि सभी एक्टिविटीज होते हो, जैसा ये आपको इस चार्ट में दिख रहा है। ट्रेड सेक्टर में जनरल गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में भी जनरल गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता है। रियल एस्टेट प्रोफेशनल में केवल नॉन डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस और प्राइवेट कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस काम करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस और प्राइवेट इंटरप्राइजेस काम करते हैं। और अदर सर्विसेज में इसी प्रकार दिया हुआ है। बेसिकली इन्हीं 5 सेक्टर में जो एक्टिविटीज हुई, उस रेलेवेंट सब सेक्टर में उस इंटरप्राइज ने जो काम किया उसका हम लोग जीवीए कैलकुलेट करते हैं, फिर वो जोड़ देते हैं जिससे कि हमको उस सेक्टर का जीवीए मिलता है। बेसिक अप्रोच जीवीए कैलकुलेट करने का, कहां से हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं, डेटा सोर्स हमारा क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ एक चीज फिर से आप लोग के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देखिए, ट्रेनिंग तो हम कह रहे हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीएसडीपी की हम यहाँ बात करते हैं। लेकिन जब सेक्टर वाइज हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम लोग जीवीए कैलकुलेट करते हैं। दोनों में स्लाइड्स में थोड़ा सा अंतर है। सेक्टर वाइज हमारे पास टैक्सेशन और सब्सिडीज की फिगर उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ पे हम लोग उस चीज को जोड़ते नहीं है। इनफैक्ट जीवीए में जब हम सब्सिडीज और टैक्सेशन को जोड़ते हैं और सब्सिडीज को हटा देते हैं तो जो फिगर मिलती है वो हमारा जीडीपी कहलाती है। सेक्टर लेवल पे वो जीवीए कहलाता है, जिसमें टैक्सेशन माइनस सब्सिडीज नहीं रहता है। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सेक्टर वाइज पे टैक्सेशन का और सब्सिडीज का डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, तो डेटा ना होने के कारण यहाँ पे हम लोग को जीवीए कैलकुलेट करते हैं। जीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, उस सेक्टर में कितना हमने वैल्यू ऐड किया हुआ है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इन पूरी सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर का जो डेटा होता है उसको हम लोग बजट डॉक्यूमेंट से लेते हैं या संबंधित एनडीज के और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लिया जाता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के संबंध में जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है
उनको एवरी ईयर अपना एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। वह रिटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पर भरा जाता है और उनके सर्वर पर उपलब्ध होता है। इसी के आधार पर वो एक डेटाबेस बनाते हैं जिसे कहते हैं एमसीए डेटाबेस। एमसीए डेटाबेस में हर एक्टिविटीज वाइज, इंडस्ट्री वाइज हमारे पास डेटा उपलब्ध रहता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे, जिसके आधार पे हम लोग जीवीए कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंटरप्राइजेस हैं जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसे कहते हैं हम अनइनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज। जैसे रियल एस्टेट में बहुत लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे कैप्चर करें? अगर वो बड़ी कंपनी है तो कॉर्पोरेट कंपनी अफेयर्स में उसका नाम लिखा, उसने रिटर्न भरा, वहां से हमने कैप्चर कर लिया। गवर्नमेंट सेक्टर अगर रियल एस्टेट में काम कर रही है तो उससे हमने मिल गया। लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर सब जगह काम कर रहे हैं, इनका हम डेटा कैसे लें? रियल टाइम डेटा हम मिलने का हमारे पास कोई समय जरिया नहीं है, क्योंकि इतना अनऑर्गेनाइज है ना। हमारे इस समय ऐसे कोई नियम है कि जिससे उनको हम मैंडेटरी कर सके कि वो रिटर्न ना, क्योंकि हमेशा ये झगड़ा चलता है डेटा लेने वालों में और जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं उनके में। वो कहते हैं साहब कंप्लायंस बर्डन कम किया जाए। कंप्लायंस बर्डन ये कि रिटर्न जितना कम से कम भरे उतना इंडस्ट्री जो है बेहतर काम करेगी। डेटा वाले कहते हैं साहब आप जब कुछ देंगे ही नहीं तो हम एनालिसिस किस चीज पर करेंगे? जब आपको रिटर्न भर दे रहे हैं तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे? मुझे याद है कि पहले जब उन्होंने जॉब चालू किया था तो ये जो एमएसएमईज है, जिलों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता था, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। 5 साल में एक बार उनका रिन्यूअल होता था। बाद में आया कि साहब वो बार बार रिन्यूअल करने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशान किया जाता है, लिहाजा वन टाइम रिन्यूअल, वन टाइम आपने डेटा भर दिया, काम खत्म। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि आज के दिन में हमको मालूम नहीं है कि कितने हमारी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है, उसमें से कितने चल रहे हैं, क्योंकि हमने वो पैटर्न खत्म कर दिया कि वो 5 साल बाद आता है। तो कभी आप पूछिए डिपार्टमेंट से, कभी कहेगा साहब 13 करोड़ हमारे पास एसएमईज हैं, कभी कोई कहेगा 8 करोड़ एसएमईज हैं। वी डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर्स की कितना है। तो इस अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स को मेजर करने के लिए हम लोग के पास दूसरा साधन ये था कि साहब हम सैंपल सर्वे करें। सर्वे करके हम स्टेट लेवल पर कुछ फिगर बना सकेंगे कितना है। तो ये जो आपका तीसरा वाला है इंटरप्राइज सर्वे, हम लोग एनएसएसओ के माध्यम से करते हैं, इंटरप्राइज सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। इंटरप्राइज सर्वे से हमें मालूम चल जाता है कि हर इंडस्ट्री में पर वर्कर कितना जीवीए पैदा कर रहा है। हर इंडस्ट्री पर वर्कर कितना जीवीए पैदा कर रहा है, ये इंटरप्राइज सर्वे से हमें मालूम चल जाता है। और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से हमें ये मालूम चल जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने दिखाया, देखिए लास्ट हमारा सर्वे 2011-12 में हुआ था और 12 साल बीत हो गए, हम दूसरा सर्वे के रिजल्ट नहीं निकाल पाए। ये क्वाइट पॉसिबल है कि 11-12 से 22-23 के बीच में बहुत सेक्टर में चेंजेस आए हो, बहुत नए इंडस्ट्री पैदा हुए हो, बहुत नए इंडस्ट्रीज, पुराने इंडस्ट्रीज खत्म हो गए हो। लेकिन ये गैप पीरियड का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो ये डेटा गैप को रखते हुए हम लोग अपना जीएसवीए कैलकुलेट करते हैं। इसी के क्रम में इस समय ऑल इंडिया सर्वे चल रहा है 2021-22-23 में। इसके रिजल्ट आने में 2 साल लगेंगे। उसके बाद हमको इस डेटा की जगह हम नया डेटा यूज करने लगेंगे। तो डेटा सोर्स इज द मेजर इशू फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेटा या जीवीए इन दीज सेक्टर्स। अब जो हम डेटा लेते हैं, या जैसे हम कह रहे हैं कि आपके बैलेंस शीट ले रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स के या प्राइवेट कॉर्पोरेट एमसीए डेटाबेस से जो हमको डेटा मिलता है,
उस डेटा में से हम जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो जो सामने आपके लिखाया हुआ है, जिसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस लास्ट में सीएफसी होता है, जिसे हम डिप्रिसिएशन करते हैं। इन सब आइटम्स का जो जोड़ है वही हमारा उस पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीए कहलाता है। ये डेटा जो डीज हैं और एनडीज हैं, उनके बजट जो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसको हम ऐसे डीएस हम लोग एक टाइम लिमिट दिए रहते हैं कि इस टाइम लिमिट तक आप हमको दे दीजिए। वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब पे वो जीवीए कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक तरीका रहता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी डेटा होता है इस सेक्टर में, वो हम बजट से देख लेते हैं, बजट में कितना एलोकेशन आपकी सैलरीज में हुआ है, दैट इज आपका जीवीए हो जाएगा, कंपनसेटेड टू एम्प्लॉयज और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि प्रॉफिट नहीं होता, रेंट नहीं होता, इसको हम लोग नहीं करें, केवल वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में कितना आपने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दिया और कितना डिप्रिसिएशन है उस सेक्टर में, यही दोनों को जोड़ के हमारा जीवीए मिल जाता है। तो डी एनडी और गवर्नमेंट सेक्टर का तो ये हो गया। बेसिक थ्योरम सब में एक ही है। प्राइवेट कॉर्पोरेट का एमसीए से हमको इन आइटम्स पे डेटा मिल जाता है इंडस्ट्री वाइज। जब रिटर्न भरती है कंपनीज, तो इन सब उनके रिटर्न में ये सब डेटा कैप्चर होता है। इससे हमें डेटा मिल जाता है कि कितना जीवीए कैलकुलेट हुआ। सीएफसी जो है, डेप्रिसिएशन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर वाइज हमको बताती है कि इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में इतना डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा, वो हम इसमें जोड़ देते हैं। अब तो ये हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली जो एनडीज है और डीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स में भी काम करते हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी एनडीज है, डीज है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। तो उनके द्वारा जो जीवीए एलोकेट हुआ या जो जीवीए कैलकुलेट हुआ, उसको डिफरेंट स्टेट्स में उनको बांटना रहता है, एलोकेट करना रहता है। तो इस एलोकेशन के लिए उनके द्वारा कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। उस इंडिकेटर को यूज करते हुए वो जीवीए एलोकेट करते हैं। जैसे रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का जीवीए, नेशनल लेवल पे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का जीवीए उन्होंने कैलकुलेट किया। उसके बाद एनएसएस के 67 और 68 राउंड जो इंटरप्राइज सर्वे और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, उसके हिसाब से पर जीवीए हमारा कितना आता है, पर वर्कर जितना जीवीए आता है, उसके हिसाब से वो स्टेट को एलोकेट कर देते हैं कि कितना आपका जीवीए सेंट्रल गवर्नमेंट के एनडीज डीज या प्राइवेट कॉर्पोरेट में मिला। बेसिकली इसमें होता है, जैसे कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो अक्रॉस स्टेट्स काम करती है। मान लीजिए जैसे आपने रिलायंस को लिया, रिलायंस की यूनिट जो है इंडिया के कई स्टेट्स में काम करती है और उनका रिटर्न जो है केवल एक रिटर्न दाखिल करते हैं वो सभी अपने यूनिट्स को मिलाते हुए। अब महाराष्ट्र में अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका रिटर्न जो है महाराष्ट्र से भरा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि महाराष्ट्र से भरा गया तो सब उसको महाराष्ट्र को ही सब जीवीए मिल जाएगा। चूंकि हमारे स्टेट्स में भी यूनिट रही है तो उसको एलोकेट करने के लिए वो एक फॉर्मूला लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका पर वर्कर जीवीए कितना हुआ है और उस रिलायंस इंडस्ट्री के स्टेट में
कितने वर्कर्स काम करते हैं, उस हिसाब से वो आपको एलोकेट कर देते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई स्टेट ये ना कहे कि साहब हमको कम मिला, हमको अधिक मिला जीबीए एलोकेशन। जो इंडस्ट्रीज पटकर आपके केवल स्टेट में ही काम करती है उसका जो जीबीए आपको पूरा मिल जाता है, लेकिन जहां पे मल्टी स्टेट यूनिट्स है वहां पे वो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला से देखते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का, प्रोफेशनल सर्विसेज में कंप्यूटर का भी आता है। कंप्यूटर के लिए स्टेट लेवल कोई डेटा नहीं है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में कितना हमने कैलकुलेट किया, कितना हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से जीबीए मिला, क्योंकि एक्सपोर्ट एक जगह से होता है, डिफरेंट हो सकता है कि काम यहाँ हो रहा है लेकिन आपकी यूनिट जो है महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, जहां से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें वही तरीका निकालते हैं, वो जीबीए निकालते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाइड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मेड बाय यूनिट, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया होता है, उसमें जो यूनिट रजिस्टर्ड है यूपी की, उन्होंने कितना एक्सपोर्ट किया उस रेशियो से वो ऑल ओवर इंडिया के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बांट के आपको दे देते हैं। तो यहां ये इंपॉर्टेंट यह है कि STPI में हमारे मैक्सिमम यूनिट रजिस्टर्ड हो। अगर वो, क्योंकि अभी भी इंडिया यूपी में STPI से बाहर बहुत लोग इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जो सॉफ्टवेयर में है, उनका डेटा कैप्चर नहीं हो पाता है, या हो पाता है तो वही हम लोग सर्वे के हिसाब से कैप्चर हो पाते हैं। तो स्टेट का ये जोर होना चाहिए कि हमारे STPI में अधिक से अधिक यूनिट्स रजिस्टर्ड हो। जितने यूनिट्स रजिस्टर्ड होंगे उतना हमको रेशियो जीबीए का अधिक मिलेगा। इसी प्रकार फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, बहुत फिनटेक्स हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू एडेड कर रहे हैं, लेकिन इनका भी डेटा स्टेट में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कलेक्ट करता हो। इन सब लोग का डेटा RBI से मिलता है। दे रिपोर्ट रेगुलरली टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉस्पी को वो डेटा प्रोवाइड कराता है, फिर मॉस्पी उससे जीबीए कैलकुलेट करता है और सर्टेन इंडिकेटर्स लगा के स्टेट को एलोकेट करता है। तरीका सब में यही है। मैक्सिमम टर्शरी सेक्टर में, जो सेक्टर मैं बता रहा हूं, इसमें मैक्सिमम डेटा मतलब 3/4 ऑफ डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 1/4 जो स्टेट्स डीज और एनडीज से संबंधित डेटा है वो हमको यहीं से मिलता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि डीएस जब डेटा मांगता है, जिस तारीख तक मांगता है उस तारीख तक वो डेटा अवश्य उपलब्ध करा दे। बेसिकली हम लोग को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और स्टेट डीज से जो बैलेंस शीट मांगते हैं हम कि आप बैलेंस शीट दे दीजिए, वो बैलेंस शीट अगर समय से मिल जाएगा तो हम उसका कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज पाएंगे। अगर नहीं मिलेगा समय से तो कवरेज कम ना हो तो हम क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं, आपके पुराने डेटा को ही फिर से भेज देते हैं। तो जैसा मैंने पिछली बार कहा कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपका डेटा नहीं आने से आपकी पुरानी फिगर वहां जा रही है। तो एक तब आपका उद्यम जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा स्टेट की जीएसडीपी पे उसका असर पड़ रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपके प्रॉफिट में 10% 20% का इंक्रीज हो रहा है और आपने अगर समय पे डेटा हमें नहीं भेजा तो हमने पुराना डेटा भेज दिया, तो जीएसडीपी पर जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है वो तो कम होगा ही होगा। और कल अब जैसा $1 ट्रिलियन में चल रहा है, बहुत अधिक डेटा की पकड़ चालू हो गई है। जब जीएसडीपी उम्मीद के मुताबिक ग्रो नहीं करती है तो हायर लेवल से बहुत डेटा पे स्क्रूटनी चालू हो जाती है। जब डेटा स्क्रूटनी चालू होती है तो होता है भाई कि ये डेटा क्यों नहीं बढ़ा, तो या वहां पर हमको यही कहना पड़ता है कि साहब डिपार्टमेंट ने डेटा नहीं दिया। तो बट नेचुरल हायर लेवल पर फिर जाता है भाई किस डिपार्टमेंट डेटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे के सालों पे ही 5 साल में हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है।
तो डेटा की स्क्रूटनी अब बहुत होगी, डेटा की अवेलेबिलिटी पर बहुत स्क्रूटनी होगी। जो पहले हम लोग कुछ भी भेज देते थे या नहीं भेजते थे उस पर कोई स्क्रूटनी नहीं होती थी, क्योंकि यह देखा गया है कि हम बहुत कुछ अपने जीएसटीपी में इंक्रीज केवल समय से डेटा की अवेलेबिलिटी और एक्यूरेट डेटा के मिल जाने से ही कर लेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ने इस साल 20%, 15 से 20% का ग्रोथ जीएसडीपी में दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार एपीसी सर ने बहुत डेटा का स्क्रूटनी किया। कई क्रॉप्स ऐसे हैं जो जिसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उन्होंने ग्रोथ नहीं कैप्चर किया, कितना ग्रोथ हुआ। और जैसे जैसे हायर अप्स इस पे सेंसिटाइज हो रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू स्क्रूटनाइज द डेटा वेरी माइन्यूटली। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो डेटा समय पे दीजिए और सही डेटा दीजिए, कि कल कोई अगर हायर उस पर क्वेश्चन करता है तो यू आर एबल टू टेल देम कि यस दिस डेटा इज करेक्ट, इट हैज बीन अराइव्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। और भी अदर सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोचिंग सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, सोशल पर्सनल सर्विसेज है। सब में डेटा का पाने का एकमात्र यही तरीका है कि अगर वो एक्टिविटीज डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा है तो उनके बैलेंस शीट से वो डेटा हम लेंगे। यदि गवर्नमेंट द्वारा खुद किया जा रहा है तो बजट डॉक्यूमेंट से लेंगे, और यदि अनइनकॉर्पोरेटेड है तो ये सर्वे से हम लेंगे। सर्वे से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिकॉज डेटा हमारे पास रियल टाइम अवेलेबल नहीं है अनइनकॉर्पोरेटेड का। अगर कोई डिपार्टमेंट इसका रियल टाइम डेटा हमको दे दे, उपलब्ध करा सके, या अपने यहाँ कोई स्कीम बनाए, तो वी आर वेरी हैप्पी टू यूज इट। क्योंकि अभी जैसे आप देखेंगे जीएसडीपी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें बेस ईयर जो है 2011-12 है। बेस ईयर मतलब हमने एक बेस सेट कर लिया कि 2011-12 में डिफरेंट सेक्टर्स की हमारी जीवीए कितनी है। अब आगे को जो जीवीए हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे उस 11-12 के बेस ईयर में कि हमारा कितना % ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये जीवीए कैलकुलेट दो चीज पे होता है, एक तो 11-12 में जो प्राइस थे उस प्राइस पे हमने कितना ग्रो किया या हमारी कितनी जीवीए हुई, और दूसरा आज के प्राइस में कितना हमने जीवीए हमारा आया। इनफैक्ट जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है वो हम करंट प्राइस पे पाने के लक्ष्य रखे हुए हैं कि आज के प्राइस में आज कितना हम जीवीए हमारा हो रहा है। अगर वो $1 ट्रिलियन 2027 तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य रखा हुआ है कि इतना हम समय पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अभी मेरे बाद डिलॉयट इंडिया के कंसल्टेंट को हम लोग ने हायर किया हुआ है, वो स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। ये स्ट्रेटजी हाईएस्ट लेवल पे अप्रूव्ड है, 5 सालों के लिए अप्रूव्ड है। इस पे धीरे धीरे काम अगले 5 सालों तक होता रहेगा, क्योंकि इन सब स्ट्रेटजी का गेस्टेशन पीरियड बहुत अधिक रहता है। सपोज इन्होंने कहा कि नया टाउनशिप हमको विकसित करना है, इट विल टेक टाइम 3 to 4 years, लेकिन उस पर काम आज ही से चालू करना है। तो स्ट्रेटजी डेवलप किया गया है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस को कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जो की टेकअवेज मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेन की टेकअवेज है इस उसमें आपसे जो हमारा अनुरोध है कि डेटा शुड बी शेयर्ड, एक्यूरेट डेटा शुड बी शेयर्ड विद द डीएस और नॉट ओवर डीएस। कई जगह ये होता है कि डेटा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी धीरे सीधे डालना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी डेटा डालने का एक टाइम लिमिट फिक्स है। उस तारीख के बाद अगर आप डेटा डालते हैं तो दे डोंट कंसीडर इट।
ठीक है, आप ईमेल से भेजें चाहे जिसे, उनके वेबसाइट पे देयर इज ए टाइम फिक्स, उस पर कर लेते हैं तो आप दे देंगे। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि एक्यूरेट डेटा डीएस को दीजिए, एक्यूरेट डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे दीजिए, और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को प्रॉपरली तैयार करें। देखिए बैलेंस शीट का जो पोर्शन मैं लेता हूं या हम लोग लेते हैं, जीवे कैलकुलेटर में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। अब इसमें वेरिएबल क्या है? देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक सर्टेन अमाउंट से ही आपका बढ़ेगा, रेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, इंटरेस्ट जो आपको देना है देना ही है, तो ले दे के प्रॉफिट, प्रॉफिट आप जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा जीवीए में बढ़ोतरी हो। तो आपके यहाँ जो फाइनेंस के लोग हैं, जो लोग करते हैं, तो ये उनसे अनुरोध कर लीजिए कि साहब प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है समय सीमा के अंदर अपना फाइनल करा के डीएस को शेयर कर दें। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग फील्ड में थे, मैक्सिमम जगह जाते थे तो यही होता था साहब बैलेंस शीट अभी फाइनल नहीं हुई, ऑडिटेड नहीं हुई, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि इस तारीख तक आप करके दे दीजिए, लेकिन उसका बहुत परसोस नहीं होता, तो आराम से चलता है, कभी कई साहब निदेशक मंडल की बैठक नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ या कभी कुछ हो गया। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि वहां तो आपका 2 महीने बाद काम हो गया, आपने पास करा दिया, आपकी ऑडिट पूरी हो गई, लेकिन उसका जीडीपी पे स्पिल ओवर इफेक्ट कितना पड़ा है ये इंटेंजिबल है। ये तो जब आप डेटा स्क्रूटनी होने लगेगा तब पता चलेगा कि साहब कितना हमारा इससे, जो डेटा से इन्वॉल्व रहता है या जिसको डेटा में इंटरेस्ट है उसको ये टास्क दे कि जो डेटा आ रहा है एटलीस्ट कंपेयर कर ले पिछले साल से, अदर स्टेट से, कि वाई देयर इज सो डिफरेंस बिटवीन योर डेटा एंड उनके डेटा। उससे ये हमें डेटा मिलेगा तो क्वालिटी इंप्रूव करेगी, सब चीज इंप्रूव करेगी। बस दैट्स ऑल। मुझे और बाकी ये सब सर्वे वर्वे के बारे में है, ये आप लोग को भी उसमें मिल जाएगा कि किस सर्वे से किस डेटा से हम लेते हैं। लबोलबाब ये है कि टर्शरी सेक्टर में हमारे प्ले करने का रोल बहुत कम है, लेकिन जो है वो हमको सही से मिल जाए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एलोकेशन करती है उसको जरूर ध्यान से देखें कि उस एलोकेशन में जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो हमारे स्टेट के इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो डेटा हमारा सही आए। इन्हीं सब के साथ मैं समाप्त करता हूं, और कुछ किसी को कुछ फर्दर इसमें एडअप करना है तो यू आर इनवाइटेड फॉर फर्दर एडअप। थैंक यू। Mr. Ram Mushni, he will be speaking on IT and ITES. IT/ITES sector as part of the UP 1 trillion economy project. Talking about the IT and ITES sector, globally the sector has a very strong outlook and is forecasted to reach about 6.7 trillion by 2030. And India is one of the leading IT services player in the technology market. While it's also a leading player in the IT services market, the other segments also India is doing really well. India is recording double-digit growth in all the other segments. And also if you look at the India technology market, it's primarily export dominated, but what we are seeing is the domestic consumption is also rising. And this is what is causing a more accelerated growth in the coming years. And the domestic demand is primarily driven by digital transformation across sectors that's happening, and also there's an increased digital adoption from the government as well. So these are a few things that's driving the growth ahead. And what we can as well see is a lot of the technology companies are now creating technology products for India, for the India market itself. So moving on, we've just drawn a comparison of the STPI exports across various states. What we see is UP is standing 6th in terms of the STPI exports in the country,
while Karnataka takes the lion's share of the STPI exports. It's the leading state and it's growing at 10%. Karnataka is growing at 10%. That means there's a lot of scope in the technology market, and UP as well has a lot of potential to achieve in the coming years. And when we looked at the recent data from the STPI annual reports, we noticed UP has almost recorded a 20% plus growth in the recent years. So there's a lot of potential for UP to do well in the IT and ITS sector. And what we've also noticed is a lot of investments, particularly in the data center segment, has come in the recent years. And also UP is being projected as a data center hub in the North India. And from a startups perspective as well, UP has about 10,000 odd startups registered in the state. This all contributes just as a strong foundation for the sector for a good future. And from an economy contribution perspective, the sector contributes to about 2.74% of the state's economy as of now. And at a national level, the contribution is at 7.4%. So UP is below the national average, and in the coming years, UP certainly can catch up with the national average and get close to it. We've also done a baseline assessment of the IT and ITS sector landscape in Uttar Pradesh, and what we've noticed is a lot of the IT units are situated in Noida, and very minimal presence of IT units in rest of UP. But interestingly, there are good eminent engineering colleges spread across the state. So that itself points to a lot of scope for a balanced regional development that the sector can drive. And we also have Center of Excellences presently situated in Noida. There's an Artificial Intelligence Center of Excellence in Noida. We also have a MedTech COE in Lucknow itself. There's also a drone COE in Kanpur. The government is also looking at establishing further COEs in areas of blockchain, quantum computing and space tech in the coming few years. So with all these COEs, there's a lot of scope to drive research and innovation in technology, and also to support the startup ecosystem with the requisite knowledge. From a talent perspective, what we've noticed is there are about 55,000 odd engineers that the state produces annually. But the employment that the STPI units record is just about 1.18 lakh. So a lot of these talent, or rather the engineers that the state is producing, they're going for jobs in other technology clusters like Bangalore, Hyderabad, Pune. So we can say that UP is exporting talent to other states, or rather losing talent to other states. And when we spoke to some of the IT professionals who are from UP but working in other states, they're willing to relocate back to UP if they are able to find the right opportunities. Also, in terms of the colleges, UP also has good number of NRIF ranked colleges on par with other states like Telangana, Karnataka and Maharashtra. So that's also to say that UP produces good quality of talent, not just the quantity of talent. Now, just shifting gears to infrastructure. Infrastructure is very important for the IT and ITS sector. A lot of companies look for grade A office space area to set up their companies, and these cities in UP, particularly Noida and Lucknow, they offer competitive rental rates in comparison to the more established technology clusters such as Bangalore or Gurgaon, Hyderabad. So there's a potential for UP cities to attract more IT investments in the coming years. And we've also noticed there's a lot of vacant office space that's available in Noida, and this is a huge advantage because companies looking for readily available plug-and-play infrastructure, that's available in Noida. We just have to do a better promotion of our policies and get the investors to set up their units in the state. Also, a trend that's come up in recent times is the emergence of flexible work centers. These are also called as co-working spaces. This is a new model that's emerging. It gives option for companies to rent out
limited number of seats in a co-working space center. This is particularly advantage because they do not have to spend too much of capital and allows them to scale up as and when it's required. And particularly we can see there are about 62 such co-working space centers already in Lucknow, which catching up on par with other tier 2 cities. So overall, I think the state should focus also on developing state-of-art IT parks and co-working space centers across major cities of UP. Noida is already there, but beyond Noida also we can look at establishing this kind of infrastructure in other cities. So we've done a study on Hyderabad's IT journey, primarily to understand the drivers that has helped Hyderabad achieve where it is today. So Hyderabad is one of the late starters in this IT and ITS sector. Bangalore already had a first mover advantage, but Hyderabad went on to build an iconic cyber towers. They did that in a joint partnership with L&T, and they did that IT park construction on a fast track basis. They finished the construction in about 18 months, and they went on to board anchor investors. So they reached out to Microsoft, Oracle, and offered them deep rental discounts to attract them and attract them to set up centers within the cyber towers. And that also caused a cluster effect, because a lot of other small companies then started to look to Hyderabad to set up their units. And apart from that, they have also undertook several skilling initiatives. They have set up a finishing school in Hyderabad, primarily to upskill the engineering talent and the students from degree colleges, equip them with the necessary soft skills and technical skills so that they're more employment ready. So what started off as a cyber towers in about 5 acres, now the entire IT ecosystem in Hyderabad is spread over 350 acres, and Hyderabad stands tall as one of the technology cluster in India. And the current Telangana government is also looking to expand the IT sector into other tier 2 cities in that state. So taking the lessons from Hyderabad's IT journey, we've also done case studies of other cities. Considering all of that, we've shaped our recommendations for UP 1 trillion mission, and we will cover the recommendations in the next slide. I would request my team member Akshat Jain to cover the recommendations. Thank you, everyone. Thank you, Ram, for giving a quick overview of the IT-ITS ecosystem in UP. तो हमारी वर्तमान IT की जो स्थिति है, and where we want to reach in the future, for that, moving to the next slide, these are our key recommendations. तो हमने UP के जो बड़े शहर हैं, उनका सबका assessment किया, और हमने ये पाया कि नोएडा, लखनऊ, Prayagraj, Varanasi and Kanpur are the most suited for IT-ITS in the next 5 years. नोएडा को already देश के बड़े IT hubs में माना जाता है, इसलिए नोएडा को एक global tech hub बनाया जा रहा है. पिछले 1 साल में AI का boom हम सब ने महसूस किया है. AI यानी Artificial Intelligence. हर एक कार्य में AI का प्रयोग किया जा रहा है. इसलिए राजधानी लखनऊ को AI सिटी में विकसित किया जा रहा है. प्रयागराज और वाराणसी में उत्तम दर्जे के काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT BHU, IIIT प्रयागराज. उन सबको यूज करते हुए प्रयागराज एंड वाराणसी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ER&D सेंटर्स, मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स. एंड लास्टली IIT कानपुर में स्थित ड्रोन COE, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेवरेज करते हुए कानपुर भारत का ड्रोन हब बनाया जाएगा. इन सबको हासिल करने के लिए we have identified 4 key pillars. Number 1, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें देश के बड़े-बड़े रियल एस्टेट निवेशक को यूपी में IT पार्क्स और IT सिटीज बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा. नंबर 2, इकोसिस्टम, जिसमें जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आजकल काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जैसे
ब्लॉकचेन हो गया, स्पेस टेक हो गया, 5G 6G, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खड़ी की जाएंगी। बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स को प्रस्ताव किया जाएगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 3, ब्रांडिंग एंड पॉलिसी, जिसमें हमारे आईटी के अफसर बड़े बड़े टेक इवेंट्स में यूपी के डेवलपमेंट्स को ब्रांड करेंगे, हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज की चर्चा करेंगे। एंड लास्टली टैलेंट, क्योंकि आईटी में टैलेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें हमारे युवा को ट्रेन करना होगा ताकि वी कैन क्रिएट एन इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर स्ट्रैटेजी फॉर द रोड मैप ऑफ यूपी $1 ट्रिलियन। ITITS का एक बहुत ही रेलेवेंट एक कोर सिग्निफिकेंस है एंड आईटी का GSDP में शेयर बढ़ाना होगा टू एनेबल $1 ट्रिलियन। GSDP में $7 बिलियन का कंट्रीब्यूशन है विच इज रफली 3%। जैसे कि राम ने मेंशन किया, our national average in India is 7.4%, so that is our target and we aim to achieve that with the department support. Thank you. Collection. Now our problem with tourism sector is we are counting the same tourist multiple times. So how do we get to a correct data? Because one tourist visits, like for example, if we take up Lucknow, he visits Bhul Bhulaiya once, then he goes to Chota Imambara, we count him again, then he goes to Lucknow Zoo, the State Museum, we count him every time. So our data is becoming like we also have a lot of discontentment about it, but we don't know how to go about it. So if you all can guide us some way, that how do we go about getting accurate data? मैं सोचा था कि आप लोग टूरिस्ट कम काउंट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि टूरिस्ट हम तो ज्यादा काउंट कर रहे हैं, डबल काउंट कर रहे हैं, मल्टीपल काउंट। 2-3 चीजें हैं टूरिस्ट के बारे में जो कहना चाहूँगा। एक तो कोई यूनिक आइडेंटिफायर हो जिससे हम टूरिज्म की इंफॉर्मेशन को मालूम कर सकें। मैं तो सिर्फ एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस आपको बता सकता हूँ उसमें, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इंडोनेशिया ने जो अभी किया है, इंडोनेशिया ने जो बाली और उनके और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो मोबाइल डेटा यूज करते हैं। उस टावर की रेंज में वो मोबाइल कितने दिन तक रहता है उसके बेसिस पे वो असेस करते हैं कि मान लीजिए कोई टूरिस्ट स्पॉट के आसपास जाएगा, 3 दिन रहेगा, इसके बाद वो बाहर चला जाएगा, तो वो उसको टूरिस्ट मानते हैं और जो रेगुलरली उस एरिया में मोबाइल रह रहा है उसको वो रेजिडेंट मानते हैं। इस तरीके से टूरिज्म का नंबर वो निकालते हैं। अब मान लीजिए लखनऊ कोई आए और 3 जगह जाए, तो वो 3 जगह इसलिए काउंट करने के बजाय कि उसको मालूम है कि यही मोबाइल यही घूम रहा है, अभी यही 4 जगह 5 जगह जाएगा, इसके बाद वापस चला जाएगा, कहीं मालूम नहीं जहाँ भी जाएगा। इस तरीके से उसको ट्रैक कर लेते हैं एंड दैट आई फाउंड इज वेरी गुड एक्सरसाइज। लेकिन इसमें 2 काम की जरूरत पड़ेगी। एक तो यह है कि आपको मोबाइल कंपनी से टाई अप होना चाहिए जिससे कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए, वो शेयर करें मूवमेंट टावर के आसपास मूवमेंट की, और वो यूनिक आइडेंटिफायर उनके पास सारा कुछ IT बेस्ड है, तो उसे वो सारा नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा कहीं से, और whether the state government does it very good, then you can become an example for others। बाकी जो पे भी कर सकते हैं, थोड़ी बात करें आपके सीनियर लेवल पे, और अगर ये संभव हो तो जाके कभी देखा है, इंडोनेशिया में कर रहे हैं, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने शुरू किया था और वो पूरा उसको वो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स मानते हैं। मैंने खास तौर से पूछा कि भाई, और उसकी जब टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट बनाते हैं जिससे कि मालूम पड़ता है कि टूरिज्म का GDP में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, उसके लिए भी नंबर्स उसी से लेते हैं जिससे कि नंबर उसमें सही मालूम पड़ जाए। फिर कॉस्ट, एक सर्वे से कॉस्ट निकाल लेते हैं और कितना पैसा खर्च किया, और उससे उनको मालूम पड़ जाता है कि GDP का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। उससे रिलेटेड कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्ट में कितनी है, परचेज कितना करता है, बाकी हैंडीक्राफ्ट करता है, कुछ करता है, वो सारा एस्टिमेट हो जाता है। इस तरीके से उसका टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट बनाते हैं। तो ये एक संभावना है, लेकिन इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेथोडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, चेंज है।
ये वो नहीं है कि जो हम लोग होटल में जितने आए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, या जब एंट्री किसी भी मॉन्यूमेंट्स में किया तो उससे नंबर, टोटल नंबर काउंट कर लिया कि भाई इतने दफ़े आया है आदमी यहाँ पे। तो वो फ़र्क किया जा सकता है। टू मी इट अपीयर्स क्वाइट रीजनेबल। और कोई इशू किसी को बोलना है? तो GSDP के लिए तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अगेन टू मेक द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन मेड, पहली बात तो ये है कि डाटा टाइमली रिपोर्टिंग हो, जैसा कि संजय ने कहा, कि बैलेंस शीट कई दफ़े फाइनलाइज होने में टाइम लगता है, और उसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट्स काफ़ी मदद कर सकती हैं, क्योंकि कई दफ़े मैंने देखा कि ND जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई है, ऑडिट नहीं हो पा रही है, ऑडिट होने के बाद उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हो रही है, और उसके लिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है कंपनी अफेयर्स की कि इसको विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ जाके उनको एग्जाम्पशन मिल जाता है, तो सरकार रिक्वेस्ट करती है तो मान ही लेते हैं। तो वो एक इशू है, उसकी वजह से यहाँ पे सारा कंपाइलेशन गड़बड़ होता है। टूरिज्म का कोई आदमी है अपने यहाँ से? अच्छा, आप बता। हाँ, आप कर रही होंगी। So actually, when we talk of agri-tourism and rural tourism, now agri-tourism is when a tourist goes to see how agriculture is happening in India. So basically, हम उसे कुछ अच्छे गाँव में ले जाते हैं जहाँ कुछ खास तरह की खेती हो रही है, से ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसी खास तरीके से हो रहा है कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. तो जो फार्म टूरिज्म एंड एग्री टूरिज्म इज सॉर्ट ऑफ वन, and farm tourism is more popular in states like Punjab and Haryana and other places comparative to UP. वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, उनका वो स्टाइल ऑफ, उनका क्या कल्टीवेशन का स्टाइल है, हाउ दे आर लिविंग, कैसे खा रहे हैं पी रहे हैं, एंड मोर और लेस रूरल टूरिज्म एंड एग्री टूरिज्म भी एक दूसरे को ओवरलैप करता है, बिकॉज ये भी गाँव में ही जाकर देखते हैं. रूरल टूरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वी ट्राई एंड सेलेक्ट विलेजेस. जैसे अभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को. उस दिन इंडिया टूरिज्म ने पूरे देश में गाँव की एक कंपटीशन की थी, उसमें बहुत सारे नॉमिनेशंस फाइल हुए थे और उन्होंने बेस्ट विलेजेस को सेलेक्ट करके अवार्ड दिया है. सो बेसिकली देयर वी ट्राई एंड सेलेक्ट सम विलेज which has some kind of a indigenous character, कुछ उसका यूनिक होना चाहिए. Suppose there is some kind of a handicraft being practiced. कुछ हमारे गांव है जहाँ कोई संगीत वहाँ से निकला, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजमगढ़. आजमगढ़ में there's a village हरिहरपुर, जहाँ हर घर में जो बच्चे हैं वो म्यूजिक सीखते हैं, और हमारे जो बड़े बड़े संगीत के घराने हैं उन सब की कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो वहाँ से निकल कर आए हैं. तो नाउ दैट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट हरिहरपुर. तो एक टूरिस्ट जो है वो वहाँ कोई मॉन्यूमेंट या कोई म्यूजियम या वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ रूरल टूरिज्म प्रोडक्ट जिसको वो वहाँ देखने जाता है कि कैसे घर में छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे भी संगीत का अभ्यास करते हैं सुबह उठकर. तो देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर टू इट. इसी तरह जैसे आपके ब्रज में गांव है जहाँ से चरकुला निकला है, तो ये जो यूनिकनेस है ये थोड़ा सा एग्री टूरिज्म इसे अलग हट करके है कि हमने गाँव के ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को निकाला है और टूरिस्ट को हम वो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं. बिकॉज टूरिस्ट, आज का टूरिस्ट इंटरेस्टेड है, स्पेशली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है वो देखना चाहता है कि हमारे गाँव में रहने की परंपरा क्या है, कैसे उठते बैठते हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, घरों का आपकी मेंटेनेंस कैसा है, जो रूरल खाना है वो कैसे खाया जाता है. तो ये सब चीजें हैं जिनमें टूरिस्ट, जिसको एक्सपीरियंशियल टूरिज्म हम लोग नाम देते हैं. तो ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है जिसको लेकर के फॉरेन टूरिस्ट एक्सपीरियंस करना चाहता है, आवर वे ऑफ लिविंग. सो दैट इज ये छोटा सा मेन डिफरेंस है बिटवीन रूरल टूरिज्म एंड एग्री टूरिज्म. आई होप आई एम क्लियर. थैंक यू.
Yes, ma'am, that is the problem which agreed. You are very correct, because we also don't have an answer to this, that how do we get those figures to us? Like people are going for rural tourism. Like hotels, we get the figure from the hotel registers, guest check-ins, from the monuments, from the ticketing or surveys and other things. But how do we know who is coming for rural tourism? How many people have gone to the villages? Yeah. So this is something we are clueless. Yes, that is correct. Like sir had just said, we need to have some kind of a unique identifier for tourists. So that kind of some device or some mechanism can come in. And maybe like one thing we have introduced, like in Varanasi, the Kashi Vishwanath temple, how did we get to the figure of 7 crore tourists? How confidently we are saying we had 7 crore tourists visiting Kashi Vishwanath? This is because of the head count machine. There are 4 entry points and they put up head count machines. So that machine gives us a correct figure, how many people went in, how many people came out. So we only subtract a mere 10%, maybe who are the regulars, the policemen, the priests, and the people localites, but then 7 crores is a big figure. If we even reduce 10%, it's a huge figure, and that is a correct figure. So we need to have some. Yeah. Yes. We have already. Yes, we haven't. The study will be shared with us sometime. Yeah. No, we have already made an interface. Like now we have done away with like typing and sending to headquarters, then headquarters compiling it. We have made pages on the net. Like we will be filling from there in the headquarters. At any point of time, they can just extract information, and it will be accurate. If somebody has just filled 5 minutes ago, that will also be visible. So this we have done, and maybe improvements we are also thinking about it, because that's very important for our plannings. We need to have accurate data. I'm sure we'll be getting it, because sir has said that it has been shared very recently, so it will be shared with us, and probably this was the reason all the departmental officers were asked to come here for this session. Thank you. Rural tourism, how do they approach it? That's the real issue. How do you know where you want to go? Unless you have some link, some way to approach and identify, and when the people are willing to, because rural areas people do not accept it as it is. So those people, I know in Punjab, they have houses, so they have put them their addresses and details and the connectivity on their web, and people approach there, register themselves and pay the money for it, and then they go, and ultimately that's how it is done. So this information is there on the web. It's only a question of how to extract. Anything you want to add? So actually, tour operators are selling packages. Like for UP, we are not doing it that way. There are tour operators who take you for rural tourism. Their product itineraries have this kind of itineraries, and the people who choose, but then their data doesn't come down to us. That's with the tour operator. That's right. So, but then tour operators will be able to share that data if you ask for, or you ask them to regularly file some kind of information on your site or something to capture it.